Let's move forward and talk about paragraph 3 now, and we'll discuss difficult word meanings first. So first difficult word in this paragraph is affection. It means a feeling of liking and caring for someone or something. Urdu में इसे कहेंगे अकीदत. Second word is laurels. It means a recognition of achievement. Urdu में इसे कहेंगे एजाज. Third word is scholastic. It means of or relating to schools or scholars. Urdu में इसे कहेंगे नजरिया परस्त. Fourth word is threshold. It means the plank, stone or piece of timber that lies under a door, and the Urdu word for it is dahliz. Fifth word is predecessors. It means ancestors, or Urdu में से कहेंगे साबका. Sixth word is fortunately. It means luckily, and Urdu में इसका मतलब होता है खुशकिस्मती से. Seventh word is sovereign. It means possessing supreme or ultimate power. The Urdu word is khud mukhtar. Eighth word is implications. It means a possible significance, and the Urdu word for it is ishara. Ninth word is revolutionary. It means constituting or bringing about a major or fundamental change. Urdu में इसे कहेंगे इनकलाबी. Tenth word is shackles. It means one of a pair of metal rings connected by a chain and fastened to a person's wrist or the bottom of the legs to prevent the person from escaping. Urdu में इसे कहेंगे बेड़ी. 11th word is constructive. It means if advice, criticism, or actions are constructive, they are useful and intended to help or improve something. Urdu में इसे कहेंगे इस्लाही. 12th word is militant. It means active, determined, and often willing to use force. Yani jangju. 13th word is attainment. It means the act of achieving something. Yani husul. 14th word is thwarted. It means to stop something from happening or someone from doing something. Urdu में इसे कहेंगे नाकाम बना देना. 15th word is holocaust. It means a very large amount of destruction, especially by the killing of a very large number of people. Urdu में इसे कहेंगे बड़ी तबाही. 16th word is butchered. It means to kill or cut up an animal for meat. Urdu में इसे कहेंगे ज़िबा करना. 17th word is rehabilitation. It means the process of returning something or someone to a good condition. Yani bahal karna. 18th word is stricken. It means suffering severely from the effect of something. Urdu में इसे कहेंगे किसी बीमारी, दुख या मुसीबत की जद में आना. 19th word is inception. It means the beginning of an organization, official activity, system or agreement. Yani आगाज. 20th word is upheaval. It means a great change, especially causing or involving much difficulty, activity, or trouble. Yani khalbali. 21st word is chastened. It means to correct by punishment or suffering. And Urdu में से कहेंगे सरजंश करना. Let's move on to the explanation of third paragraph now. कायदे-ए-आज़म अपनी स्पीच स्टार्ट करते हुए अब इस पैराग्राफ में कहते हैं यूथ को टारगेट करके, यूथ को एड्रेस करके कि अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप लोगों के सामने स्पीच कर रहा हूँ और आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, तो मैं एक स्टेट का हेड हो के यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, बट एज अ फ्रेंड आप लोगों से आज बात करूँगा. फिर ऑब्वियसली ये कॉन्वोकेशन का टाइम था, कॉन्वोकेशन के ओकेजन पे वो स्पीच कर रहे थे, तो सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि आज बहुत से लोगों को डिप्लोमास, डिग्रीज अपनी मिल गई होंगी, बहुत से लोगों ने लॉरल्स भी अचीव किए होंगे, यानी उनको अवार्ड्स मिले होंगे, एजाज मिले होंगे अच्छी परफॉर्मेंस शो करने पे. इसके लिए मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. बहुत से लोगों के आज कॉलेजिक करियर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी तालीमी जो उनकी पूरा एक सफ़र था वो कंप्लीट हो गया है. नाउ दे आर रेडी फॉर व्हाट? फॉर द नेक्स्ट थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. नेक्स्ट थ्रेशोल्ड यानी लाइफ की अगली दहलीज पर जाने के लिए दे आर ऑल प्रिपेयर्ड, जहाँ पे वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को करेंगे, सीखेंगे. सो फॉर दैट वो उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं. और साथ ही साथ कहते हैं कि अनलाइक योर प्रीडिसेसर्स, आप लोग बहुत लकी हो, अपने एंसेस्टर्स की तरह नहीं हो, क्योंकि आपके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. फॉर व्हाट? कि अब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट कर रहे हो, नाउ यू विल फ्लरिश एंड वर्क फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फ्यूचर इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट. एक आज़ाद स्टेट में आप अपने लिए काम कर सकते हो. लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आपको और आपके सारे फेलोज़ को ये चीज़ जानना भी ज़रूरी है कि अगर आज हमारे पास पाकिस्तान है एज एन इंडिपेंडेंट एंड फ्री स्टेट, तो उसको हासिल करने में हमें कौन कौन सी इम्प्लिकेशंस और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा.
कायद-ए-आज़म कहते हैं वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हम गुलामी की बेड़ियों को तोड़ चुके हैं। अब जो हम इस स्टेट में रह रहे हैं, हमने अपने फ्रीडम के लिए काम करना है, अपनी बेटरमेंट के लिए काम करना है। अब अगर हम फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लाइसेंस आ गया है कि अपनी स्टेट में हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप कर रहे हो वो दूसरे लोगों के इंटरेस्ट को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। इट शुड नॉट बी डन irrespective of the interest of other people। यहाँ other people किन को रेफ़र किया जा रहा है कि हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में ऑब्वियसली मुसलमान की मेजॉरिटी है, बट देयर आर सम माइनॉरिटीज़ एज वेल। दूसरे रिलीजन से भी लोग जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो कायद-ए-आज़म इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि दूसरे जो रिलीजन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको सप्रेस किया जाए या उनके इंटरेस्ट को ओवरलुक कर दिया जाए। तो इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो भी आपने अपने फ्री स्टेट में करना है, दूसरे लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल करते हुए करना है। ये नहीं है कि अगर हमने एक फ्री स्टेट ले लिया है, इंडिपेंडेंट स्टेट ले लिया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, हमारे सारे जो ड्यूटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नो, अब हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। हमने अब अपनी नेशन के लिए किस तरीके से काम करना है, यूनाइटेड रह के, डिसिप्लिन रह के काम करना है। नाउ वी हैव टू वर्क विद अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड नॉट अ मिलिटेंट स्पिरिट। मिलिटेंट स्पिरिट से हमने कब काम किया, जब हम अपने स्टेट अटेन कर रहे थे, और फिर हमने मिलिटेंट स्पिरिट यानी फोर्स को यूज़ करते हुए वी फाइनली अचीव्ड इट। अब जब हमारे पास आ गई है ये स्टेट, वी हैव अटेन्ड इट, अब फोर्स की ज़रूरत नहीं है, अब कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट की ज़रूरत है। फिर कायद-ए-आज़म कहते हैं इट इज़ ईजियर। किस चीज़ को ईजी कह रहे हैं कि अगर एक इंसान जेल में रहता है और फ्रीडम के लिए फ़ाइट करता है। कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है, गवर्नमेंट को रन करने के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर एक इंसान जेल में रहता है और फ्रीडम के लिए फ़ाइट करता है तो इट्स वे ईजियर। गवर्नमेंट को रन करना बहुत मुश्किल है। ही सेज कि जब पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रहा था, ऑब्वियसली जो एनिमीज़ थे, जो हमारे दुश्मन मुल्क थे, वो नहीं चाहते थे कि ये एग्जिस्टेंस में आए, एंड स्पेशली जिनसे हम सेपरेट हो रहे थे। तो हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस डाली गई। उनमें से एक हिंड्रेंस क्या थी कि जब पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आ रहा था तब पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकॉस्ट हो गया। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि बहुत सारे मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर बचर्ड मर्सिलेसली। उनको बहुत बेरहमी से ज़िबा कर दिया गया। बहुत सारे लोग जो थे, मिलियंस ऑफ पीपल, उनके घर छीन लिए गए, वो बेघर हो गए, और 50 लाख पीपल जो थे वो पाकिस्तान, पंजाब में आ गए एज रिफ्यूजीज़। अब जब वो लोग वहाँ पे आए तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उनकी रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस और उनकी केयर करना। ये सारी हिंड्रेंसेस अगर एक वेल इस्टेब्लिश स्टेट को भी फेस करना पड़ती तो वो भी थोड़ा सा हिल जाती। पाकिस्तान तो अपने बिल्कुल इन्फेंट स्टेट पे था। इन्फेंट स्टेट मतलब कि अभी नया नया एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये एक एनिमी की जो थी वो चाल थी कि पाकिस्तान को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़े और ये एग्जिस्टेंस में ना आए। लेकिन इसके रिजल्ट में क्या हुआ, पाकिस्तान फेस्ड इट, और पाकिस्तान और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, चेस्टेंड हो के सामने आया, और दुश्मन जो है वो डिसअपॉइंटेड हुए। ये सारे अपहीवल का पाकिस्तान पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ।